ICSC Mathematics Class 10th Chapter 15 Exercise 15D Question number 12. The external diameter of a hollow metal sphere is 12 centimeter and its thickness is 2 centimeter. Find the radius of a solid sphere made of the same material and having the same weight as the hollow स्फीयर. देखिए एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो एक्सटर्नल रेडियस कितना हो जाएगा 6. इंटरनल डायमीटर कितना होगा 2 सेंटीमीटर थिकनेस है उसका, सो 12 - 4 दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. ये इंटरनल डायमीटर 8 सेंटीमीटर. इंटरनल रेडियस कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर. लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर. अब इसके इक्विवेलेंट है 4/3 22/7 6 क्यूब माइनस 4 क्यूब इज इक्वल टू 4/3 22/7 इंटू आर क्यूब. अब देखिए 22/7 22/7 कैंसिल, 4/3 4/3 कैंसिल. अब हमारे को मिल गया 6 क्यूब माइनस 4 का क्यूब. 6 का क्यूब कितना होता है 216, 4 का क्यूब 64. So 216 minus 64 that is equal to 152. अब 152 का हमें क्यूब रूट निकालना है in order to find out the radius of the solid sphere. So we have to take the cube root. क्यूब रूट निकालने के लिए या तो आप कैलकुलेटर का मदद ले लीजिए या इसको लॉगरिथम से भी आप सॉल्व कर सकते हैं. So radius will be equal to 5.3368. That is, radius is equal to 5.34 centimeter. Let z is equal to cube root of 152. So 152 can be written as 152 raised to power 1/3, taking log both sides. So log of z is equal to 1/3 of log of 152. That is 1/3. अब इसका कैरेक्टरिस्टिक देखिए, 3 डिजिट है इसलिए 2 रख दिया मैंने. अब 15 के 2 में देखा, लॉगरिथम देखा पहले, तो 2.1818 आया. इसको 3 से डिवाइड किया तो 0.72726 आया. टेकिंग एंटी लॉग, जैसे एंटी लॉग ले हुए तो ये z हो जाएगा और z विल बी इक्वल टू 5333 प्लस 9, क्योंकि 2 और 6 का मीन डिफरेंस लोगे आप. और अब यहाँ पर करेक्टरिस्टिक 0 है तो उसमें 1 प्लस करोगे तो 1 आ जाएगा, तो 5.342. तो z विल बी इक्वल टू मीन्स z इज इक्वल टू 1/5.34. दैट विल बी द रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर. दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13. A hollow copper ball has an external diameter of 12 centimeter and a thickness of 0.1 centimeter. Find the outer surface area of the ball. Second, the weight of the ball is if 1 cubic centimeter of the copper weighs 8.88 gram, take pi is equal to 3.14. देखिए एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, सो एक्सटर्नल रेडियस कितना हो जाएगा 6. इंटरनल डायमीटर विल बी इक्वल टू 12 minus 0.1 minus 0.1 that will be 11.8. So internal radius will be equal to 5.9. Outer surface area of the ball is equal to 4 into 22/7 into 6 square. That will be equal to 452.57 centimeter square. Now we have to find the weight of the ball. That is 4/3 into 3.14 into 6 square minus 5.9 square. 6 cube minus 5.9 cube into 8.88 gram, because
ये डेट दिया हुआ है क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम. वी हैव टू टेक द वॉल्यूम ऑफ द बॉल. That will be 4 by 3 into 3.14 into 6 cube minus 5.9 cube into 8.88. So it will be equal to 4 by 3 into 3.4 into 216 minus 205.379 bracket closed. It will be equal to into 8.88, that is 4 by 3 into 3.14 into 10.621 into 8.88, and it will be equal to 394.86 gram. This will be the weight of the ball. Now come to the question number 14. Marbles of diameter 1.4 centimeters are dropped into a beaker containing some water and are fully submerged. The diameter of the beaker is 7 centimeters. Find how many marbles have been dropped in it if the water rises by 5.6 centimeter. अब देखिए डायमीटर दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर मार्बल का, so radius will be equal to 0.7 centimeter. The volume of water raised will be equal to 22 by 7 into 7 by 2 into 7 by 2. 7 इसका क्या है डायमीटर है, इसलिए रेडियस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच. देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक रेंज होगा. जैसे ही हमने इसमें मार्बल ड्रॉप कर दिया, मार्बल ड्रॉप करने पर ये स्पेस, तो इट विल डिस्प्लेस द वाटर. सो ऑन अकाउंट ऑफ डिस्प्लेसिंग द वाटर ड्यू टू सबमर्जिंग द marbles, the water will rise ultimately. So it is given already. So let n be the numbers of marble placed into the beaker. So n into 4 by 3 into 22 by 7 into 0.7 cube, रेडियस का क्यूब देखिए 0.7 क्यूब should be equal to 22 by 7 into 7 by 2 into 7 by 2 means pi r square h, that is 5.6 given है. So number of देखिए यहाँ से कैंसिल कीजिए, 22 by 7 22 by 7 कैंसिल हो गया, और ये 4 इधर भी 56 है, 4 को हमने 56 को कैंसिल किया, 14 आया. ये 7 दो 7 यहाँ से हटा दिया इससे, और ये 7 से हमने 14 को डिवाइड कर दिया. सो 7 टू जब 14 2 आ गया, इस 2 से नीचे वाले 2 को मैंने कैंसिल कर दिया, और ये 10 है, इसका 0 1 0 1 0 यहाँ से हटा दिया. अब ये 2 है तो 2 से हमने 100 को डिवाइड कर दिया, दैट इज़ 50. क्योंकि ऊपर वाला न्यूमरेटर से कैंसिल हो सकता है, डिनोमिनेटर से कैंसिल हो सकता है. तो हमारे को क्या मिला अल्टीमेटली 50 into 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 into 3 that will be equal to 150. Means number of marbles will be 150, and it will be the answer of question number 14. Now come to the question number 15. A cylindrical tub of radius 5 centimeter and length 9.8 centimeter is full of water. A solid in the form of a right circular cone mounted on a hemisphere is immersed into the tub. If the radius of the hemisphere is 3.5 centimeter and the height of the cone outside the hemisphere is 5 centimeters, find the volume of the water left in the tub. अब देखिए एक सिलेंडर है, उसके अंदर ये डाला जा रहा है, रखा जा रहा है, एक क्या है दिया हुआ है, सॉलिड है जिसका ऊपर वाला शेप कोनिकल है, नीचे वाला हेमिस्फेरिकल है. इसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर
और वर्टिकल हाइट जो है इस कोन का, जो वर्टिकल हाइट है कोनिकल पार्ट का 5 सेंटीमीटर है, और इसका तो 3.5 रेडियस है, तो 3.5 इसका डेप्थ भी होगा। सो द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टब will be equal to 22/7 into r square, means the radius square of the cylinder, into 9.8 the height of pi r square h वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है। उसके वॉल्यूम में से हम इसको माइनस कर देंगे। देखिए किसका माइनस करेंगे हम, इस टोटल का, मीन्स 2/3 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 का क्यूब प्लस 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 होल स्क्वायर इंटू 5। अब देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है कोन का, ये कोन का वॉल्यूम है और ये हेमिस्फीरिकल का वॉल्यूम। 22/7 हर एक जगह से कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या बचा 5 स्क्वायर का, 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 को हमने 9.8 में मल्टीप्लाई किया, 245 आ गया। यहाँ पर देखिए ये जो ब्रैकेट है यहाँ से 1/3 कॉमन ले लीजिए, 1/3 कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बचा यहाँ पर 85.75 प्लस 61.25 इस वाले पोर्शन का। अब इनको हमने 1/3 से डिवाइड कर दिया, टोटल आ गया 147। 147 को हमने 3 से डिवाइड किया, वी गॉट 49। सो 22/7 और 245 में से 49 माइनस किया तो 196 आया। 7 से इसको डिवाइड कर दिया, 28 आया। 22 इंटू 28 दैट विल बी इक्वल टू 616 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द टब विल बी 616 क्यूबिक सेंटीमीटर। Come to the question number 16. A toy is in the form of a cone mounted on a hemisphere of radius 3.5 centimeter. Total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area. Find the total surface area. देखिए हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट, ये टोटल हाइट तो दिया हुआ 15.5 सेंटीमीटर और ये है 3.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस। सो 3.5 इसमें से माइनस कर दीजिए तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए ये हाइट जो है 12 सेंटीमीटर और ये रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। 12 का स्क्वायर कीजिए और 3.5 का स्क्वायर कीजिए, दोनों को प्लस कीजिए और उनका स्क्वायर रूट लीजिए तो 12.5 आएगा। देखिए यहाँ पर स्लांट हाइट निकालने का, कोनिकल पार्ट का 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर किया, इनको प्लस किया और फिर स्क्वायर रूट लिया तो 12.5 सेंटीमीटर आया स्लांट हाइट। टोटल सरफेस एरिया विल बी पाई आर एल, पाई इंटू आर इज 3.5, एल इज स्लांट हाइट दैट इज 12.5 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर मीन्स इसका 2 पाई आर स्क्वायर। सो इट विल बी इक्वल टू टेक आउट, देखिए यहाँ से पाई का कॉमन निकल रहा तो 22/7 बाहर ले लिया, यहाँ से 3.5 इधर भी 3.5 बाहर लिया हमने। रेस्ट ऑफ द थिंग्स को हमने 12.5 प्लस 7, क्योंकि 3.5 है एक बचा रहेगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा, इसमें दोनों को प्लस करेंगे। तो 22/7 इंटू 3.5 इंटू 19.5, 7 से इसको डिवाइड किया 0.5 आया, 0.5 को हमने 22 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया 11 इंटू 19.5 इट विल बी इक्वल टू 214.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया आपका आ गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 17. The largest sphere is carved out of a cube of a side 7 centimeter. Find the volume of the sphere. एक क्यूब है जिसका हर एक साइड है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सभी 7 सेंटीमीटर है।
अब हम उसमें से लार्जेस्ट स्फीयर कार्व आउट करना, निकालना है काट करके, तो उसका डायामीटर हो जाएगा 7, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर निकालना है तो 4/3 इंटू पाई इंटू 3.5 का क्यूब, सो 4/3 इंटू 22/7, और इसका जो 3.5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, इट विल बी इक्वल टू 42.875। 7 से हमने डिवाइड कर दिया इसको, आई गॉट इट 6.125। अब 6 देखिए यहाँ पर 3 डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है, 125 है, इसलिए डेसिमल को हटाने के लिए हमने 1000 से डिवाइड कर दिए। सो 4 इंटू 22 इंटू 6125 होल अपॉन 3 इंटू 1000। अब इसको हमने सॉल्व किया और फर्दर we got it 11 into 49 divided by 3, it will be equal to 539 divided by 3, so ultimately you will get 179.66 and it will be equal to 179.7 cubic centimeter, and this will be the answer of question number 17. Now come to the question number 18. A cylindrical bucket whose base has the radius of 15 centimeter is filled with water up to the height of 20 centimeter. A heavy iron spherical ball of radius 10 centimeter is dropped to submerge completely in water in the bucket. Find the increase in the level of the water. अब हमारे को इंक्रीज निकालना है। देखिए इस पहले तो एक सिलेंड्रिकल पॉट है, इसमें पानी भरा हुआ है। जैसे ही हमने एक स्फीयर को डालेंगे तो क्या होगा, इट विल डिस्प्लेस द वाटर। जैसे ये डिस्प्लेस करेगा वाटर, दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द लेवल ऑफ द वाटर इन द सिलेंडर। सो लेट एक्स बी द इंक्रीज इन द वाटर लेवल। अब हमने बोला चलो यहाँ से एक्स, इसके डालने से, स्फीयर को डालने से इसका जो हाइट इंक्रीज होती है वो एक्स है। 20 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है। अब ये पानी जो है कुछ डिस्प्लेस करेगा, जैसे मर्ज करेंगे हम, डुबाएंगे तो। लेट एक्स बी द इंक्रीज इन द वाटर लेवल, सो देयरफॉर 22/7 इंटू 15 क्या है, इसका रेडियस है सिलेंडर का, 15 स्क्वायर इंटू एक्स should be equal to 4/3 into 22/7 into 10 क्यूब। इसका जो रेडियस है 10 है, तो इसका होता है फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 into 22/7 into 10⁻³ so x will be equal to 4/3 into 1000 divided by 225। देखिए 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा, और ये 1000 है, यहाँ पर 1000 कर दिया मैंने। इसको सॉल्व किया, x विल बी इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाई 27, अल्टीमेटली इट विल बी इक्वल टू 5.25/27, 5 and 25/27। so this will be the increase in the water level. Now come to the next question, that is 19. Question number 19. A radius of the base of a cone and the radius of the sphere are the same, each being 8 centimeter. Given that the volumes of these two solids are also the same, calculate the slant height of the cone correct to one place of the decimal. देखिए दो चीज दिया हुआ है यहाँ पर, इसका भी रेडियस और इसका भी रेडियस, दोनों इक्वल है। रेडियस ऑफ द स्फीयर है
और दैट इज 8 सेंटीमीटर, इसका भी रेडियस है जो 8 सेंटीमीटर है. So volume of cone will be equal to 1/3 pi r square h. So 1/3 into pi into 8 square into h. और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना ज़्यादा हो जाएगा 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब मीन्स 8 का क्यूब. अब देखिए यहाँ पर 8 स्क्वायर है, यहाँ पर 8 क्यूब है. हमने इस पूरा कंप्लीट 8 स्क्वायर को कैंसिल किया और यहाँ से क्यूब को हटा दिया. 1/3 तो 3 है, 3 इधर भी है, 3 कैंसिल, पाई से कैंसिल हो गया. सो हाइट विल बी इक्वल टू 32 मीन्स 4 इंटू 8 यहाँ पर छुटा हुआ है. सो 4 8 जा 32 सेंटीमीटर हाइट आ गया आपका. ये हाइट जो है वर्टिकल हाइट जो हो जाएगा 32 सेंटीमीटर. सो वी हैव टू फाइंड आउट द slant height also. So L will be equal to means slant height, that will be the root of 32 square plus 8 square. 32 का स्क्वायर करेंगे तो 1024 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, दोनों को प्लस किया 1088 आएगा. अब देखिए 1088 को हमने फैक्टराइज कर दिया 64, क्योंकि 64 का तो हमें स्क्वायर रूट आसानी से निकल सकता है. 64 इंटू 17, तो 64 का 8 आ जाएगा. 17 रूट ऑफ 17 कर दिया. 17 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4.123. अब इसमें 8 का मल्टीप्लाई किया तो 32.984 सेंटीमीटर एंड इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 33 सेंटीमीटर. देखिए 32.984 है. सो इट इज जस्ट अप्रोचिंग टू 33 सेंटीमीटर and it will be the answer. Now come to the question number 20. A vessel is in the form of an inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of the top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the rim. When the lead sorts, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of the lead shot dropped in the vessel. देखिए यहाँ पर एक पॉट है जो कि इन्वर्टेड कोनिकल पार्ट में है. इसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर. इसका वर्टिकल हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर. अब इसमें हमने लेट शॉट डाला है. लेट शॉट का रेडियस कितना दिया है 0.5 सेंटीमीटर. सो लेट एन बी द नंबर ऑफ लेट शॉट. अब जो पानी ड्रॉप बाहर निकलता है दैट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन इट. सो 22/7 इंटू पाई स्क्वायर और 5 स्क्वायर इंटू 8 इंटू 1/3. देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है. सो 22/7 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 8 दैट इज हाइट 1/3. उसका 1/4 करना है हमारे. तो देखिए यहाँ पर हमने किया है n इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू 0.5 का क्यूब. ये स्फीयर का है लेड शॉट का वॉल्यूम है. And it should be equal to 1/4 of pi into 1/3 into 5 square into 8. अब देखिए पाई से कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पर किया है मैंने 1/4 1/3 इंटू पाई इंटू 25 इंटू 8 होल डिवाइडेड बाई 4/3 इंटू पाई इंटू 125/1000. डेसिमल को हटाया, इसको जब क्यूब किया तो 5.5 है ना, 0.5 का हमने क्यूब किया तो 125 डिवाइडेड बाई 1000. इसको सॉल्व किया, 25 से कट कीजिए आप लोग, तो विल गेट हियर n नंबर ऑफ मार्बल लेड शॉट विल बी इक्वल टू 100. This will be the answer of question number 20.
Now come to the question number 21. A boy is made up in the form of hemisphere surmounted by a right cone whose circular base coincides with the plane surface of the hemisphere. The radius of the base of the cone is 3.5 meters and its volume is 2 by 3 of the hemisphere. Calculate the height of the cone and the surface area of bio. Correct to 2 places of decimal. अब देखिए एक वर्ड इस्तेमाल किया है यहाँ पर बाय मीन्स द एनीथिंग विच इज फ्लोटिंग थिंग्स इज बायोंसी. लॉ ऑफ बायोंसी आपने पढ़ा होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल में भी. मीन्स में तैरने का प्रिंसिपल क्या है, लॉ ऑफ बायोंसी. तो ये वर्ड है यहाँ पर BUOY. So volume of the hemisphere is 2 by 3. 2 by 3 into pi into 3.5. Volume of the 2 by 3 into pi into 3.5 का क्यूब. 3.5 इसका मीटर है, 3.5 मीटर का क्यूब. Volume of conical part, that is 2/3 इसका ऊपर वाले का. वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट इज 2/3 ऑफ द स्फीयर का वॉल्यूम जो है हेमिस्फीयर का. सो 2 by 3 इंटू 2 by 3 पाई इंटू 3.5 का क्यूब. लेट h बी द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट. अब इसका हाइट को हमने मान लिया h है कोनिकल पार्ट का. सो हम कोनिकल पार्ट का मालूम है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है. तो 1/3 इंटू पाई इंटू 3.5 का होल स्क्वायर इंटू h शुड बी इक्वल टू 2/3 इंटू 2/3 इंटू पाई इंटू 3.5 का क्यूब. अब यहाँ पर 3.5 का स्क्वायर है, इसको पूरा कैंसिल किया और इसका क्यूब हटा दिया हमने. अब देखिए यहाँ से 3, इधर का 3 गायब कर दिया, इधर से पाई कैंसिल कर दिया. अब हाइट निकालना, हाइट विल बी इक्वल टू 4 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 3. सो इट विल बी इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 3. अल्टीमेटली इट विल बी इक्वल टू 4 and 2 by 3 meter. So height will be equal to 4 and 2 by 3 meters. Now the slant height we have to find out in order to find the surface area. तो स्लांट हाइट देखिए यहाँ पर आ गया 14/3 और ये है 3.5. सो 14/3 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू 196/9 प्लस 12.25. इसको सॉल्व किया, हमारे को मिला 196 प्लस 110.25/9. इसको सम किया 306.25 डिवाइडेड बाई 9. टेक द स्क्वायर रूट. तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसका तो 3 आ जाएगा, इसका आएगा 17.5. अब आ जाइए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बायो. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बायो of the conical part will be equal to 22/7 into 3.5 into 17.5/3. इसको निकालना हमने तो कितना आया आपका 22 पाई आर एल होता है, पाई आर एल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पार्ट. तो पाई आर एल, ये एल हो गया आपका, देखिए यहाँ पर निकाला था. सो इट विल बी इक्वल टू 7 से हमने कैंसिल किया, 7 इसको डिवाइड किया तो 3.5 को इट विल बी 0.5 को इसमें मल्टीप्लाई किया तो 11 आ गया. 11 इंटू 17.5/3 वी गॉट
192.5 by 3, it will be equal to 64.167 डिवाइड करने पर a curved surface area of the hemispherical part will be equal to 2 into 22 by 7 into 3.5 square. So it will be equal to 44 by 7 into 12.25. हमने 7 से इसको कट किया, it will be equal to 1.75. So multiply किया पूरा, that will be equal to 77 square meter. Now the total surface area of bio will be equal to 64.167 plus 77, that will be equal to 141.167 square meter, and this will be the answer of question number 21. Now come to the question number 22. A cylinder whose height is equal to its diameter has the same volume as a sphere of radius 4 cm. Calculate the radius of the base of the cylinder correct to 1 decimal place. देखिए, एक सिलेंडर है जिसका रेडियस और हाइट, डायामीटर और हाइट दोनों सेम है. जितना डायामीटर है उतना ही इसका हाइट है. अब हमने कर दिया रेडियस ऑफ द स्फीयर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर. सो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू 4 का क्यूब. 4 का क्यूब 64 होता है. 64 इंटू 4 किया तो हमारे को मिला 256/3 पाई. अब देखिए यहाँ पर इसका वॉल्यूम निकाला पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की जगह पर हमने लिखा d/2. d/2 का मतलब डायमीटर बाई 2 इंटू डी. पाई आर स्क्वायर एच होता है, आर स्क्वायर की जगह पर मैंने लिख दिया d/2 का होल स्क्वायर इंटू डी. That should be equal to 256/3 pi. Pi and pi will be cancelled. Here we will get d cube by 4 is equal to 256/3. अब d cube will be equal to 256 into 4 whole divided by 3. अब it will be equal to 1024 divided by 3. अब इसको जब डिवाइड किया तो 341.33. जब हमने 3 से डिवाइड किया तो कितना आया 341.33. अगर आप देखेंगे तो 7 का क्यूब कितना होता है. 7 का क्यूब 343. इट इज जस्ट अप्रोचिंग टू द क्यूब ऑफ 7. Anyhow, we have to find out the cube root of this. You can take help with the help of the logarithm. You can work out because you have already read how to find out how to use the logarithm. So d will be equal to 6.988. 6.988. It is just approaching to 7 centimeter approx. Hence the radius will be equal to 3.5 centimeter.